हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द चैप्टर द चेयर। चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या है इसमें। देयर वाज ए बॉय कॉल्ड मारियो। एक लड़का था जिसका क्या नाम था, मारियो। हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड, जिसे बहुत सारे दोस्त रखने का या दोस्त बनाने का शौक था। ही शोड ऑफ a lot, always talking about how many friends he had at his school and how he was so friendly with everyone. वो हमेशा दिखाता रहता था, बहुत शो ऑफ करता था कि उसके कितने फ्रेंड हैं और वो सबसे फ्रेंडली रहता है। One day his grandfather said to him, Mario, I bet you a fruit chart. You don't have as many friends as you think you have. तो fruit chart की एक बैट लग गई, इतने फ्रेंड नहीं जितने मेरे। I'm sure many of them are nothing more than companions or partners. Mario accepted the bet readily. तैयार हो गया एकदम, चलो भाई शर्त। However, he was not sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. So he asked his grandpa for help. He suggested, I have exactly what you need. It is in the attic. Wait here a minute. Grandpa left, soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing there. Take it. It is a very special chair as it is invisible. It is rather tricky to sit on it, but if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. ठीक है, ऐसे मुट्ठी बंद करी कहा, ये लो। बोले क्या, ये तो इनविजिबल चेयर है, दिख तो रही नहीं है किसी को कि चेयर है भी कि नहीं। Mario, brave and determined, took the strange invisible chair and set off for his school. At break time, he asked everyone to form a circle. He put himself in the middle with his chair. Nobody move. You are about to see something amazing. वगैरह कोई मूव नहीं करेगा, आप कुछ अलग देखेंगे। Mario tried sitting on the chair, having difficulty seeing it. He missed and fell straight onto his backside. His classmate had a pretty good laugh. तो चेयर तो दिखी नहीं, वो बैठा एकदम तो नीचे गिर गया, वो सब हंसने लगे। Wait, just a slight technical problem, he said, trying again. But again, he missed the seat, causing more surprise looks and laughter. Mario would not give up. He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and did not fall. This time he sat hanging in the midair. इस बार वो midair में टंग गया ऐसे. Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. Looking around, Mario saw Guneet, Asma and Deepa, three of his buddies, holding him up so he would not fall. Meanwhile, many others he had thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. हर बार वो गिर रहा, लोग हंस रहे थे, लेकिन इस बार 3 लोगों ने उसको पकड़ लिया। इस बार वो गिरा नहीं। गुनीत, अस्मा एंड दीपा, और बहुत सारे फ्रेंड थे, बट उसे पता लग गया यही उसके रियल फ्रेंड हैं, बाकी तो सब भीड़ थी। लर्निंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us. A friend would not be someone who takes joy in our bad luck. That evening, the 4 children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. They had a great time listening to stories and eating a lot of fruit chaat. From then on, they used the magic chair test on many occasions and however passed became friends for life. ये मैं इनविजिबल चेयर का करते थे, जहां जाते थे जो उनकी हेल्प करता था वो उनका फ्रेंड बनता था। ओके, देखते एक्सरसाइज क्या है। रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द स्टोरी। Mario, brave and determined, took the strange invisible chair. You have already described the chair. Now describe what kind of person Mario. किस तरह का पर्सन था? डिटरमाइंड था। एडजेक्टिव का यूज करना मैं केवल, ये देखिए लिखा है, बहुत ही डिटरमाइंड था वो, और वो थोड़ा शो ऑफ भी करता था, राइट। फ्रेंडली भी था, उसके बहुत सारे फ्रेंड थे। फ्रेंडली था, डिटरमाइंड था, और कैसा था वो, ऊपर से देख सकते हैं हम, और यहाँ पर लिखा है ब्रेव था, डिटरमाइंड था। ब्रेव एक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्रेव एक वर्ड और हो गया एडजेक्टिव का, राइट। ओके, अब आगे देखेंगे, और एक वर्ड आप यहाँ लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे आप, यहाँ से आप लिख सकते। ब्रेव, डिटरमाइंड, 2 हो गए।
और एक हमने लिखा फ्रेंडली जो कि ऊपर था। ही वॉज सो फ्रेंडली, एक एडजेक्टिव ये हो गया, ठीक है। एक आप अपने अकॉर्डिंग स्टोरी को पढ़ करके भी एक एडजेक्टिव यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ वर्ड दिया था, जैसे एक वर्ड हम लोगों को दिया गया था एटिक, स्टोरेज स्पेस इन ए हाउस जस्ट अंडर द रूफ, इतनी भंडरिया जिसको बोलते हैं, या थोड़ा सा जीने के नीचे की जो जगह बची हो, एटिक। ओके मारियो, यहाँ एडजेक्टिव आप फिल करेंगे। आपको मैसेज है वो आपको रीड करना है, जो मारियो ने अपने फ्रेंड्स दीपा, गुनीत, अस्मा के लिए। तो दीपा के लिए लिखा, डियर दीपा, आई फील सो स्पेशल दैट यू आर माई फ्रेंड, आई नो you will always be there for me. Before going to bed, I said a little prayer for Guneet, Asma and you. You made me realize the value of having good friends. Best wishes. Asma के लिए उसने लिखा, I feel blessed to know that you are my true friend. I would have fallen again today if it was not for Gurmeet, Guneet, Deepa and you. I know I can always depend on the three of you, no matter what. Best wishes, Mario. ठीक है, अब आपको करेक्ट वर्ड चूज करना, ब्रैकेट में फिल करना है। चलिए भर लेते हैं। आई एम थैंकफुल, ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। गॉड टू हैव यू एज रियल फ्रेंड फॉर लाइफ। When everyone was laughing at me, Deepa, Asma and you showed me that you care for me. You are indeed a blessing in my life। ठीक है, जो मैंने टिक किया वो फिल इन द ब्लैंक्स में करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, मैच ईच वर्ड, एडजेक्टिव्स दिए हैं, कॉलम ए में एडजेक्टिव है, और सुटेबल वर्ड जो नाउन है, ये नाउन है, जैसे ब्रेव तो फ्रेंड्स, फेवर, रेन। कॉलम बी, कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, वन हैज बीन डन एज एन एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन, जैसे कि यहाँ ब्रेव, यहाँ पर कुछ हमें नाउन वर्ड्स भी दिए, और ब्रेव के लिए सोल्जर चूज किया। अब क्लेवर के लिए क्या चूज कर सकते, क्लेवर प्लान, क्लेवर प्लान, राइट। तो क्लेवर रेन तो नहीं करेंगे, क्लेवर क्या हो जाएगा, प्लान, क्लेवर प्लान, ये कर लेंगे, ठीक है। टेस्टी, पीनट्स, हैवी, हैवी रेन, लाइट, कोल्ड, ट्रू, फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से करेंगे हम लोग। तो यहाँ क्लेवर, क्लेवर के लिए क्या लिखा था हमने, क्लेवर प्लान, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्लेवर प्लान। फिर एग्जाम्पल यहाँ बना लेंगे, ही हैज अ क्लेवर प्लान, ठीक है। अब टेस्टी में क्या, पीनट्स, आई ईट, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं इसको पूरा, टेस्टी, फिर पीनट्स, यहाँ एग्जाम्पल, आई ईट टेस्टी पीनट्स, ठीक है। ऐसे ही आप लिख लेंगे यहाँ, जैसे कि हैवी रेन, यहाँ पे लिखेंगे आप हैवी रेन, यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे स्लाइट कोल्ड, एक एडजेक्टिव का वर्ड है और एक आपका नाउन का वर्ड हो जाएगा। इसी तरह लिखेंगे ट्रू, ट्रू फ्रेंड्स, बाकी आप एग्जाम्पल आप खुद से बना करके लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में। कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुइटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग, यूज द वर्ड इन द बॉक्स। चलिए देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन अ लिटिल विलेज, एन एन हैप्पी बॉय, या ए हैप्पी बॉय, ए हैप्पी बॉय named Abhishek found an old book the attic. He read amazing stories about fairylands, magical adventures and colorful creatures. Abhishek's eyes got big as he imagined these
इसमें हम लोग क्या, दीज एडवेंचर्स, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन ओल्ड कैसल व्हेन दे प्लेड टुगेदर, देयर ओन, यहाँ पे ओल्ड कैसल की जगह और कुछ हम यहाँ पे ओल्ड कैसल यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। हाँ ना, महल, कैसल मतलब महल, ये आप कर ही लेंगे। यहाँ पे रूट वर्ड है, सफिक्स से मैजिक से मैजिकल, केयर से मैजिकल, यहाँ पे क्या बना दिया एल, तो एल ये जोड़ा मैजिक, केयर में क्या हो जाएगा केयरिंग, ये बना लेंगे केयरिंग। सेलिब्रेटेड, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लाफ, क्या हो जाएगा लाफिंग भी हो जाता, लाफ्ड हो जाता। हेल्प क्या हो जाएगा फ्रेंडशिप, इसका हो जाएगा फ्रेंडशिप। करेज का करेजियस हो जाएगा, राइट। और हेल्पफुल हो जाएगा हेल्पफुल, और वंडरफुल भी होता है, वंडरफुल भी हो जाए। और क्या हो जाएगा लाफिंग हो जाए, ठीक है। ये सब इसके क्या है सफिक्स, उनके आप एग्जाम्पल बना लेंगे सेंटेंस में। डिस्क्राइब करिए 4 फ्रेंड्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड, दिस इज नोन एज एन एक्स्ट्रॉफिक पोएम। तो ये जो एफ से स्टार्ट है, फिर आर से आई से, इनके आपको वर्ड्स लिखना है दोस्त के, ठीक है। अब आते हैं एक वाले क्वेश्चन, वो एक्सेप्टेड द बैट रीडली, तो मारियो ने एक्सेप्ट करी बैट शर्त। द चेयर वॉज इनविजिबल चेयर थी, हैविंग डिफिकल्टी seeing it he missed and fell straight onto backside that evening। all friends, not all friends, only the 4 children, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर नोटबुक के फिल इन द ब्लैंक्स अगेन स्टोरी पढ़ के करना है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है, राइट। और ये एक पजल है, चलिए इसको भी कर सकते हैं क्या, में क्या करना है, फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटिंग टू फ्रेंडशिप, you can search horizontally or vertically, there are 8 words, one word has been marked as an example, the first letter of each word has been given in bold, okay। हर जो भी वर्ड के लेटर हैं हमें दिए नहीं हैं, बट हमें ये बताया गया कि हर एक लेटर जिससे स्टार्ट है वो बोल्ड होगा ना, बोल्ड कलर से लिखा गया। जैसे एच है, एच का मतलब था हेल्पफुल, ये तो हो गया। जैसे एल, एल बोल्ड लिखा है यानी कि डार्क लिखा है, एल से क्या हो जाएगा लॉयल। और सी, सी से क्या हो जाएगा केयरिंग, ये हो गया केयरिंग। टी से क्या हो जाएगा ट्रस्ट हो जाएगा, ट्रस्ट, राइट। ये सभी वर्ड्स हैं, हमें ये बताया नहीं क्या क्या वर्ड हमें बनाने हैं, बस हमें ये कह दिया गया कि बोल्ड में लिखा है। तो एल से पहले हम बनाएंगे लॉयल, सी से क्या हो जाएगा केयरिंग हो जाएगा सी से, ठीक है। 8 वर्ड्स बताए गए हमें। टी से हो जाएगा ट्रस्ट, ठीक है। एस से क्या हो जाएगा सपोर्ट हो जाएगा, एस से सपोर्ट। और बोल्ड में आपको दिख रहे होंगे जो लेटर, एच से हो जाएगा होप, ठीक। एल से हो जाएगा लविंग, ठीक है, एल से हो गया। और एल से क्या हो जाएगा लाफ्टर, ठीक है। और देखिएगा कौन सा वर्ड है जो बोल्ड आपको दिख रहा है, और कोई वर्ड है जो बोल्ड दिख रहा हो जहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। 8 वर्ड हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए टोटल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे बोल्ड वाले हम लोगों ने कर लिए, और कोई मिसिंग तो नहीं है जो बोल्ड से स्टार्ट हो।
ओके, अब मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। थैंक यू।